Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. The sad day and a special show. And because we lost Mr. Gaddar, then we lost Mr. Zahir Ali Khan also. Both were close friends. And Mr. Zahir Ali Khan, the Siyasat editor and good friend of us, he went to attend the funeral of Gaddarji Gummadi Vittalrao garu. వారు నిన్న చనిపోయారు. ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి అల్వాల్ వారి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి అంత్యక్రియలకు తరలించారు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు అల్వాల్కు వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ లాఠీ చార్జ్లో అనుకోకుండా జహీర్ అలీ ఖాన్ గారు కింద పడిపోవడం, ఆయన మిత్రులు బాలరెడ్డి గారు అని భువనగిరి వారు ఇంతసేపు మాట్లాడారు. మనకు కొద్దిగా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉండి లేట్ అయింది. హాస్పిటల్ తీసుకపోతే బ్రాట్ డెడ్ అనేదో చెప్పడం జరిగింది. విజువల్స్ కోసం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా దొరకడం లేదు. అందుగురించే డిఆర్టీఎస్పిఆర్ ఛానల్స్ తరఫున గద్దర్ అలియాస్ గుమ్మడి విఠలరావు గారికి, జహీర్ అలీ ఖాన్ గారికి వారి ఆత్మలు శాంతించాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ, వాళ్ళ కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ, వారు మొదటి నుంచి కూడా ఏ విధంగా సమాజాన్ని చైతన్యం చేస్తూ వచ్చారో మీకు అందరికీ తెలిసిన విధమే. గద్దర్ గారు పాటలు కూడా నేను పెడతాను. కానీ జహీర్ అలీ ఖాన్ గారు అనూహ్యంగా చనిపోవడం బాధ కలిగిస్తుంది. మనకు అందుబాటులో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్ మహమూద్ అలీ గారు, వారు ఒక సీనియర్ అడ్వకేట్ కూడా. అదేవిధంగా మాకు సీనియర్ మార్గదర్శకులు మాజిద్ ఖాన్ గారు కూడా ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారు అందరికి సమాచారం ఇస్తా ఉన్నారు ఈ అనుకోని సంఘటన జహీర్ అలీ ఖాన్ గారు చనిపోవడం. అదేవిధంగా నా మిత్రుడు రియాజ్ అహ్మద్, వారు సియాసత్తులోనే పనిచేస్తా ఉన్నారు, వారు కూడా కనెక్ట్ అయ్యారు. ఒక విషాదకరమైనటువంటి దినం ఈరోజు బాధ కలిగిస్తా ఉంది. ఆగస్ట్ మనము స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నటువంటి నెల. ఈ నెలలో ఇద్దరు తెలంగాణకు ఆప్తులు, అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా తెలిసినటువంటి సుపరిచితులు, యావత్ దేశానికి కూడా తెలిసినటువంటి వీరు అనూహ్యంగా మరణం ఒక రోజు తర్వాత ఇంకొక రోజు మరుసటి రోజే ఇద్దరు చనిపోవడం నిజంగా బాధ కలిగిస్తా ఉంది. 6వ తారీఖు ఒకరు, 7వ తారీఖు ఈ రోజు జహీర్ అలీ ఖాన్ గారు. మహమూద్ అలీ పहले एक बार माजिद साहब से, माजिद गाరు ఎట్లా చూస్తారు సార్? हेलो सर. हेलो, क्या बोलिए सर? जोहार जोहार गदर गारू, जोहार जहीर गारू. These two Telangana sons are no more. The affection between these two people shows us how their souls meeting now. This is how the real heroes, the real freedom fighters, they died. But see, what they got in 9 years of free Telangana. They did it. So my homage and my sympathy to these two souls. And as far as Rahid Saab is concerned, is not only a Telanganese man who is fickle, and he went every nook and corner of the state, and not only the state, but also he went to so many places of the country to say about how why Telangana, separate Telangana is, why it is necessary for the people of Telangana. He went to Delhi, he went to Bombay, he went to many places where he propagated cause for Telangana, and they are the real heroes. But see, in the name of Telangana, some people got power, but just they ignored it. Simply going to their bodies, doing their homage, it's not a real tribute. Giving the state honor, it's not in charity for great souls. So what I find, the real people, before that, Telangana heroes also there. Like Chiranjeevi, one of the also the Telanganese man who also died in such a bad condition. What we achieve Telangana? This is the question now. And as far as Rahid Saab is concerned, Rahid Saab not only is a man who stood for Telangana, but also a man
a kind-hearted man. He's a kind-hearted man, and always he is helping. I know many cases where he helps many people, hundreds of people, even for paying the fees, even for the distribute, even the widows, because of his charity. So he's a very silent man, but when he used to speak, he speaks with heart. So that is my tribute to him. And as far as the brother is concerned, everybody knows there's a poet and a singer. He brought, awareness among the people of Telangana. But this awareness is now become after we realize the dream of Telangana, but it's still sometime I found it's not a dream, but sometimes it's becoming richer because for what cause we achieved Telangana, still we have not achieved that goal. So this is my tribute to this great food and the people of this soul always tells many big stories. This is about tribute to sir. थोड़े लफ्ज उर्दू में भी सर, जस्ट फ्राइडे उर्दू डायलेक्ट होता है, दक्षिण डायलेक्ट, उसमें भी उन्होंने गीत गाया, उससे गीत मेरे पास है उनका। तो मैं गजल साहब के रूह को, उनकी जो सोल है उसको मैं ट्रिब्यूट करता हूँ, उनको जोहार करता हूँ और कहता हूँ कि ये ग्रेट सोल है। और उस ग्रेट सोल से मिलने के लिए लाइव तौर पर जय जिंदा जय जहीर साहब, लेकिन वो भी उनके सोल के साथ मिल गए। देखिए ये तो टूर करते थे मिलकर, आप भी जानते हैं डॉक्टर साहब, हाँ सर, आप भी जानते हैं ये लोग कितना दूर दूर जाते थे, गांव जाते थे। हालांकि जहीर साहब एक वेल एस्टैब्लिश और एक हाई सोशल लाइफ गुजारने वाले आदमी, नवाबी फैमिली था उनके फादर और आबिद अली खान साहब हो या उनकी पूरी फैमिली हो, ये बिलोंग तो फ्यूडल साहब निजाम, जागीरदार निजाम थे। उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी कि हैविंग एनी कंपनी, बहुत वो थे। लेकिन वो तेलंगाना के लिए गदर साहब के साथ और जीवन कुमार के साथ और दीगर लोगों के साथ कितना गांव फिरते थे। बड़ा ताज्जुब भी होता था कि आदमी अपना आराम छोड़कर, अपना महल छोड़कर क्यों किसके लिए जा रहा है? उसके लिए नहीं, उसके बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए गया वो। तो ये ग्रेट सोल थे। गदर का भी यही हिसाब है। गदर अपने लिए नहीं जिया, उन्होंने तेलंगाना के लिए जिया, जिनको जमीन नहीं है उनके लिए जिया, जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए जिया। तो ये दो ग्रेट सोल है, इन ग्रेट सोल को मेरा सलाम है। और आप डॉक्टर साहब, मैं आपको भी सलाम करता हूँ कि आपने इन दोनों को रियल ट्रिब्यूट देने के लिए, यू आर ऑल्सो तेलंगानिस्ट मैन, यू आर द वन ऑफ द सॉइल, सन ऑफ द सॉइल। तो मैं भी आपको सलाम करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है बात करने का। हालांकि मैं कंटिन्यू, मेरे को फोन आ रहे हैं, मैं आपको जो है उस पर नहीं आ सका, ऑनलाइन नहीं आ सका, मैं फोन के जरिए आपकी बात कह रहा हूँ। मेरे को आपको भी सलाम है और मैं इन दोनों ग्रेट सोल्स को मेरा सलाम, तेलंगाना के अवाम का सलाम। और ये लोग हमेशा ये अमर रहेंगे, they will not die, soul never, spirit never dies, the soul never dies. एंड लास्ट बात सर, जब मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, एलबी स्टेडियम आ सकते थे, लोग ऐसा बात कर रहे थे कि काफी भेजे मेरे को। मेरे को आई विटनेस वर्सन दिया डॉक्टर साहब सर, आई विटनेस वर्सन ये है कि वन वर्सन इज देयर बिकॉज ऑफ द स्टैम्पेड, ही फेल डाउन एंड ही डाइड। वेरी सैड, ये हुआ, वेरी सैड। नहीं वो पता नहीं करप्शन। मेरे को जो लोग यूट्यूबर से इंफॉर्मेशन दिए, यूट्यूबर वो क्लिप भिजाया, मेरे को भिजाया, देखो साहब ये हुआ है, ये स्टैम्पेड हुआ। आप भी तो देखे वो लाठीचार्ज हुआ है। एक फ्यूनरल में क्या लाठीचार्ज होता है, आप बताइए सर? वो ग्रेट सोल को जो है हम गुड बाय कर रहे हैं, उसको सब लाठीचार्ज करते हैं, लाठीचार्ज करके ये आदमी को जो है ये स्टैम्पेड में होता है बोलते। ठीक है, मे बी वो हार्ट फेल हुआ होगा, हार्ट फेल अल्टीमेटली लास्ट वो रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ And he was a healthy human being, sir. He was a healthy human being, and he was there in the van. He fell down because of the stampede and resulting in lathi charge. And how can some eyewitness told like that, and they send a clip also, the lathi charge clip. अभी तो आपके पास भी होगा clip। आप एक बार मेरे को भेजिए सर, आप भेजिए, मैं प्ले भी करता हूँ। और एक बात सर, and how what loss it would be for journalism, हमारी हैदराबाद फ्री जर्नलिज्म के लिए। जर्नलिज्म के लिए वो हमेशा पूरे यंग टैलेंट को, अभी की जर्नलिज्म में ये हो गया है कि कोई नोबडी इज केयरिंग फॉर यंग टैलेंट।
Yeah. यंग टैलेंट को बराबर अप्रिशिएट करते थे, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, तेलुगु का आदमी भी है तो उसको भी बात करते थे। फंक्शन में रिसेंटली वेणुगोपाल के बुक के फंक्शन में गए, मैं वही दिखा वहाँ रहा हूँ जाके सर, लोगों से स्क्रीन पे वही दिखा रहा हूँ मैं अभी, बुक लॉन्च हाँ हाँ विद्वेशपु विश्वगुरु बोल के लॉन्च करवाए। लास्ट पब्लिक फंक्शन, इज लास्ट पब्लिक वेरी सैड तो मेरा सलाम आपको भी डॉक्टर साहब। सर। You are really man who was, paying that tribute to these two great souls of Telangana. Wonderful souls, sir. God bless them and their families. And thanks a lot to you, sir, because you are busy Thank you. and a sad day. Thank you. And as far as Telangana is concerned, as far as Yeah, that's- journalism, a sad day, sir. Yes, Thank you very much. Thank you very much. Thank you. रियाज साहब, मैं महमूद अली साहब के पास जाने के पहले हम, क्योंकि महमूद अली साहब भी इज एन ऑथर, इज ऑल्सो ए डॉक्टर लाइक मी, एंड वी हैव डिफरेंट वर्शंस, क्योंकि आप भी है, क्या बोलते हैं अभी इस हादसा को। पहले अपने गद्दार साहब 2 दिन के पहले हॉस्पिटल का बुलेटिन बोलता है कि वो रिकवर हो गए, 2 दिन के बाद वो नहीं रहे हमारे बीच में। और आज ज़हीर अली खान साहब, इट इज वेरी सैड, आई कांट इवन रिमेंबर हिम स्कोल्डिंग एनीवन, आई डोंट थिंक, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी कभी, क्योंकि आप सियासत में काम भी करते हैं। मैं आज तक नहीं देखा कि उन्होंने किसी के ऊपर गुस्से होते थे। मैं जब वहां लकड़ी का उनके घर पे भी गया एक काम के लिए, उनके पार्टनर भेजे जब भी, जी उसी एक सामान्य मर्यादा रहती उनके पास। जी डॉक्टर साहब, he was a man of character. Today is a very sad day, not only for Siyasat family. Our journalist fraternity lost a great person, a great personality who used to support us every time. Really, he is my personal loss. His demise is the loss of Ganga Jamni Tehzeeb, national integration, and everything. Because, you know, Zahiruddin Ali Khan used to support national cause, particularly Hindu-Muslim unity. He worked for Hindu-Muslim unity. Hello? यस सर, बोलिए। जो इंतकाल हुआ है वो बहुत ही नुकसान है हम सब के लिए, और he was the champion of separate Telangana the movement. He played a vital role in that. Every time he used to support Telangana or Hindu-Muslim unity, and a lot of, I think, thousands of orphans. He helped thousands of orphans. वो यतीमों की मदद करते थे। अब ऐसा लगता है कि उनके जाने से कई यतीमों यसीर बेसहारा हो गए, और वो हमेशा जब भी मुलाकात होती तो यही बात करते थे कि हमारे इंडिया का क्या होगा। इंडिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर वो बहुत तशवीश जाहिर करते थे और कहते थे कि क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हालात ठीक हो जाएंगे। आपको बता दूं कि जब कोई भी उनके पास जाता मदद के लिए, कि वो तो सियासत मिल्लत फंड के जरिए बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, यहाँ तक कि हायर स्टडीज के लिए भी देते थे, तो ज़हीर साहब वहाँ पर जो भी उनसे अप्रोच करता, ज़हीर साहब उसकी ज़रूर मदद करते थे। रिसेंटली आपको बताऊं कि एक फैमिली थी, तकरीबन 13 बच्चे हैं वो फैमिली में, वो तकरीबन ज़हीर साहब से जब मुलाकात हुई तो आज वो बच्ची एमडी की, उस लड़की ने एमडी एमबीबीएस और एमडी उसने की है, और उसके जो बच्चे हैं, यानी उसके भाई हैं, उसके बहनें हैं, तकरीबन 13 बच्चे हैं, वो 9 बहनें और 4 भाई। उसकी मदद में ज़हीर साहब का बहुत अहम रोल रहा है, और हमेशा जो भी अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती तो वो ज़हीर साहब से ज़रूर मिलते। और एक बात यह है कि जो सियासत के एम्प्लॉय है, कभी वो एम्प्लॉय नहीं समझते कि अपने भाइयों की तरह वो उसको बिहेव करते उसके साथ, और जो लोग मेहनती होते उनकी बहुत मदद करते थे, वो उनको इनकरेज करते थे, उन्हें आगे बढ़ाते थे, और हमेशा छोटे उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और छोटों से प्यार करते थे और उनको रिस्पेक्ट देते थे। और यहाँ तक कि अब गदर साहब का जो देहांत हुआ उसके बाद आपको बता दूं कि गदर साहब के तेलुगु सॉन्ग्स थे, उसका मैं ट्रांसलेशन भी कर रहा था, तो उसमें आप बता दूं कि गदर साहब को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, बहुत उनकी अच्छी दोस्ती थी, और बहुत जब उनके देहांत की खबर आई तो वो बहुत गमजदा भी हो गए थे, बहुत सैड हो गया था उनका मूड। और आज आप देखें कि किस तरह वो अपने दोस्त के लास्ट राइट्स में जाते हैं, फिर उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। तो ये डेथ उनकी नहीं है बल्कि उन लोगों की भी डेथ है
जो कुछ करना चाहते थे अपने मुल्क के लिए, अपने मिल्लत के लिए, खास पार्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो आपको बताऊंगा कि वो उस कास्ट के चैंपियन चैंपियन कह सकते हैं आप उनको। हमेशा वो किसी की मदद करते हैं। आपको रिसेंटली एक अमेरिका से फैज़-ए-आम ट्रस्ट के कोई बेनिफिशियरी आए थे, वो आपकी आवाज गई। या ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी के वो वो आए थे फैज़-ए-आम ट्रस्ट। मैं वहां पर था। वहां पर एक नॉन मुस्लिम लड़की आई और उसने अपने मदर के बारे में बताया कि वो उसको पैरालाइज हो गया है, बहुत परेशान है। तो ज़हीर साहब खुद उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर लाए थे और वहां पर उसकी मदद की गई थी। तो ज़हीर साहब हिंदुओं के लिए भी अच्छे थे, मुसलमानों के लिए भी अच्छे थे और सबसे अच्छे अपने मुल्क के लिए थे। वो यही चाहते थे कि अपने मुल्क में अमन रहे, शांति रहे। 2 दिन पहले आकार पटेल आए थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर के फॉर्मर हेड है वो आए थे। तो उनके साथ एक मीटिंग थी, उसके साथ इंटरव्यू भी था। तो वहां पर उन्होंने किताब की रिलीज भी थी, तेलुगु किताब की रिलीज भी थी। तो वहां पर उससे गए और वो फंक्शन को प्रिसाइड करे। और हमेशा वो ऐसे लोगों को पसंद करते थे जो ज्यादा मेहनती होते हैं, जो हमारे नेशन की और मिल्लत की मदद करते हैं, यानी मुस्लिम कम्युनिटी की मदद के लिए तैयार रहते हैं, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वो उनकी बहुत ज्यादा कदर करते थे। मेरे एक दोस्त यहाँ पर हैं, ऑपरेशनल हेड है सियासत टीवी के, जाहिद फारूकी। वो बहुत करीबी थे, वो भी करीब थे और हर कोई एम्प्लॉय उन्हें अपना बहुत करीब समझता था, वेरी क्लोज टू अस। हाँ, आप बात कर सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हाँ, हैं, लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपसे बात करें। लेकिन ये हमारा पर्सनल लॉस है। हर घर में सिर्फ अब ज़हीर साहब का जिक्र है कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं, गॉड ब्लेस हिम। अब हम यही दुआ कर सकते हैं। एक क्योंकि एक एक बार महमूद अली साहब से भी एक दो अल्फाज बात करने के बाद मैं आप बने रहिए 1-2 मिनट। जी महमूद अली साहब, क्योंकि जी महमूद अली साहब भी हम तब से हम वी वर फीलिंग वेरी सैड, जैसे ही पता हुआ साहब भी आज ही रिटर्न हुए फैमिली के साथ। महमूद अली साहब, हाउ डू यू, दोनों दोस्त అజీజ్ थे, యువర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, చాలా మంచి మిత్రులు. ఒకటేసారి అతన్ని చూడడానికి పోయి అంత్యక్రియల్లో జహీర్ అలీ ఖాన్ లాఠీ చార్జ్ చేయబడుతుంది, కింద పడిపోతారు. హెల్తీగా ఉన్నటువంటి ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి జహీర్ అలీ ఖాన్ తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోతాడు. ఏ విధంగా చూస్తారు మహమూద్ అలీ గారు? आपको ऑन कर लीजिए महमूद अली साहब. या बात करिए महमूद अली साहब, बात करिए. ऑडियो ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो बंद हुआ, ऑडियो ऑन करिए. ये ऑडियो Okay. हाँ बात करिए, Is बात it करिए. audible? यस सर, प्लीज गो अहेड. First of all, I pay my deep homage and condolences to both Ghaddar and our Zahid Ali Khan. ये दोनों ऐसा है, in my view, they are the gems and jewels of our Telangana. So मैं एक बात बोल सकता हूँ कि पर्सनली 80s में जब मैं when I was a student of post graduation, once I met him, Mr. Gaddar. So those memories I still remember. वो एक ऐसे इंसान थे, मैं पर्सनली उनको एक सवाल पूछा था जब कि what makes you, what drives you to do all these things, ऐसा एक सवाल पूछा था मैं. तो उसका जवाब बहुत अच्छा दिए. वो क्या बोले कि हमारे लोगों को एक आर्फन सा सोसाइटी है, इसको कोई देखने वाला नहीं है और इसको आगे सोचने वाला नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में सोचना पड़ रहा, बोल के ऐसी एक बात बोले थे. तो मेरे को ऐसा दिखा आफ्टर टॉकिंग टू हिम, मेरे को आज एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि इनके ख्यालात कैसे हैं, इनसे बात करके देखने के बाद क्या क्या निकल के आता, ये चीज मैं जानना चाह रहा था. तो मेरे को ऐसा लगा उनकी पूरी जर्नी, तो वो पूरी जर्नी एक क्लास स्ट्रगल की थी. वो अपने पर्सनल खुद के लिए कुछ नहीं कर लिए, ये समाज के लिए कुछ
कुछ तो करने के लिए एक कोशिश करे। सो द अप्रेस्ड पीपल जो हैं उनको साथ देने के लिए एक कदम आने की कोशिश करे थ्रू हिज फोक सॉन्ग्स और थ्रू हिज फोक डांस। और जो चीज गदर साहब जो करे, दिस इस विल बी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। और सरप्राइज थिंग इज, एक अच्छा इंसान जो, आई से दैट ए हेल्दी इंसान विदाउट एनी काज, Yeah. when he goes to hospital without any cause, how he dies, this is a major question My doctor need to be भी proved. hits my intelligence, अब क्या करना सर, ऐसे लोग जा रहे हैं अब। हाँ, अब ये it needs to be proved। और बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स सबको मालूम है वो वहां पर क्या होता क्या नहीं होता, पैसों के लिए क्या हो सकता। आज पॉलिटिकल फीवर है। विद इन शॉर्ट पीरियड, within 3 or 4 months, elections are going to be held. So there are several doubts that is it politically motivated? ऐसा भी एक सवाल लोगों में है कि ये हो सकता क्या, क्योंकि एक हेल्दी इंसान विदाउट एनी मेजर काज ऑफ डेथ कैसे ये हो सकता। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि वो जो आवाज उठाए गरीबों के लिए, वो खुद के लिए नहीं उठाए, वो खुद के लिए कुछ नहीं करे। खैर, सी, गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम इज डिफरेंट थिंग, बट व्हाट वी नीड टू सी इज होलिस्टिकली वो क्या चाह रहे थे, उनके दिल से वो क्या चाह रहे थे, दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड। क्योंकि सेवरल पीपल आर देयर। अब आजकल पॉलिटिशियंस के ऊपर तो 200 300 केसेस फाइल होके रहते। वो क्रिटिसाइज करना और केसेस ऊपर करवा लेना करना। तो आजकल पॉलिटिक्स में तो ये चीज है। और जाहिद अली साहब का एक ऐसा है, पर्सनली आई नो हिम बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन आई कंटेस्टेड फॉर एमएलसी फ्रॉम महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद। हाँ, उस टाइम पे रियाज साहब भी थे। तो मैं जब पर्सनली उनसे बात करके देखा, उनसे पर्सनली देखा, इज ए मैन ऑफ ह्यूमैनिटी, इज ए मैन ऑफ, मैं तो बोलूंगा एक जिबल है वो लोगों के लिए तड़प रखने वाले। हिज हार्ट थ्रॉब्ड फॉर द पुअर। जो लोग बेसहारा हैं उनके लिए वो सोचे। वो ही नेवर सा एनीथिंग ये बैड है, ये ऊंचा है, ये नीच है, ये ऐसा है, ऐसी चीज कुछ नहीं देखे। वो ही वाज मैन ऑफ इक्वालिटी। उनकी नजर ही कुछ ऐसी थी कि कंप्लीट इस्लाम उनमें उतर गया क्या, ऐसा दिखा मेरे को। तो जो हाँ, इक्वालिटी जो इम्प्लीमेंट करना था, सो दैट ही नेवर सा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और दिस और दैट, he never saw like that. True Indian. हाँ, तो और he is one of the sons of the soil, like Gaddar. He is one of the sons of the soil, a great son. तो उनमें और एक चीज मेरे को झलकी। वो एक चीज क्या है बोल तो, once he asked me to show my book. He took that book, he read that book, he requested me to do एक एक चैप्टर के ऊपर एक एक वीडियो निकालेंगे, बल्कि वो मेरे को पूछे थे। तो मैं बोला ठीक है, whenever we get leisure time we can do that one. तो वो चीज अप्रिशिएट करते हुए, all those memories are there with me. So how do you look then? That's wonderful because आपके very good memories. But how do you look at the scenario? Such a senior man, a man with a societal when he goes to attend a funeral of his own good friend, he dies there. How should we take this? See, basically this is a failure of law and order.
सो बिकॉज एक स्टैम्पेड हुआ बोल के हम कैसा उसको, इज इट नॉट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नेंस टू कंट्रोल द स्टैम्पेड? कैसे हो सकता? और आई फाइंड गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नो वन एल्स, बिकॉज स्टैम्पेड कब होता, कैसे होता? छोटा सा सी, ही इज politically very active man, a man with social conscience. Right. और दूसरा उनमें क्या चीज था बोल तो, Right. ये वन मोर एंगल बता रहा हूँ उनका, he is only the native Muslim who represented true Muslims of the Telangana. Wonderful. So that way I see, because he Very is good not tribute. That is a very good tribute. he I'll is not- बने रहिए सब. I'll come back to you क्योंकि आपने खाली हाँ, 8 मिनट का समय है. एक बार मैं रियाज साहब के पास जाता हूँ क्योंकि वहां पर सियासत के एसोसिएट एडिटर भी रेडी है. सर ऑन कर लीजिए साहब, उसको आपका माइक ऑन करके बात करिए. बिग कमेंट महमूद अली साहब का 2 कमेंट. स्टेट गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर हिज डेथ एंड ही सेज ही इज अ ट्रू मुस्लिम रिप्रेजेंटिंग इंडिया. सच अ बिग ट्रिब्यूट रियाज साहब. रियली आप वो महमूद साहब ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा है। और आपको बता दूं कि जब भी वो कहीं पर भी जाते हैं, तकरीबन 17 कंट्रीज का वो विजिट कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं। उसमें आपको बता दूं सिर्फ सिवाय सऊदी अरब छोड़ के 16 जो कंट्रीज का उन्होंने विजिट किया था वो ऑफिशियल विजिट था। और जब भी वहां पर से जाते तो यहाँ पर इंडिया के लिए जो चीज अच्छी होती उस बारे में वो चीजें लाते यहाँ पर। और ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि सियासत में जो स्कॉलरशिप्स देते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ऑर्फन्स के लिए, पुअर स्टूडेंट्स के लिए, जो फैमिलीज होते हैं गरीब खानदानों के, उनका आपको बता दूं कि तकरीबन 4 लाख से ज्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स है यहाँ पर से फायदा उठाए। और जहीर साहब से वो लोग अप्रोच होते थे और जहीर साहब ऐसे फैमिलीज की मदद के लिए बहुत बहुत आगे रहते थे। जहीर साहब वो ये नहीं देखते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान में, चाहे वो किसी मजहब का क्यों ना हो, अगर इंसानियत ना हो, ह्यूमैनिटी ना हो तो वो बेकार है। जहीर साहब का हाल ये था कि वो एक अच्छे मुसलमान थे, एक अच्छे इंडियन थे और हमेशा अपने इंडिया का, अपनी कंट्री इंडिया का, अपने जो अवाम का, खासतौर पर जो माइनॉरिटीज हैं उनका बेहतर चाहने के लिए वो शोहरत रखते थे। चाहे वो आप देखेंगे गुजरात में हो या उत्तर प्रदेश में हो या फिर आप इधर दिल्ली को जाएं वहाँ पर हो या फिर अगर बिहार में या कश्मीर में कहीं भी यानी नेशनल कैलेमिटीज वगैरह हो या दंगे फसाद हो तो वहाँ जरूर वो मदद पहुंचाने की कोशिश करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि फलां मुसलमान को पहुंचाना है या हिंदू को पहुंचाना है। वो सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ज़दा जो लोग हैं, जो विक्टिम्स है, उनकी मदद के लिए बहुत आगे रहते थे। और मेरी तो बहुत ज़्यादा मुलाकातें होती थी उनसे। और जब भी मुलाकात होती तो नेशनल जो मैटर्स होते थे, अफेयर्स होते थे, उस पर बात होती थी। और जो मुस्लिम कम्युनिटी है पार्टिकुलरली उस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी। और यही बोलते थे कि हमें यानी एजुकेशन फील्ड में आगे आना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन फील्ड में आगे लाने चाहिए। इस तरह की वो बातें करते थे। और जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करते थे और गरीब होते हैं तो उनकी मदद के लिए वो बहुत आगे आते थे। और दूसरी अहम बात यह है कि ऐसे लोगों की वो मदद करते थे जो दूसरों की मदद के लिए तड़पा करते थे। मिसाल के तौर पर जितने भी एनजीओ हैदराबाद की हैं वो उनसे आकर मिलती थी और उनसे सजेशंस लेते थे, उनकी मदद लेते थे और वो जरूर उनकी मदद भी करते थे। खासतौर पे आर्फन्स का मैं बोला ना, उससे पहले भी बोला, आर्फन्स के बारे में बहुत ही सेंसिटिव थे वो। राइट जी। और और आपको आपका एडिटर है क्या? यहाँ आपका सब एडिटर को बात करना चाहते हैं क्योंकि लास्ट अपने 3 मिनट का समय है. पर तो अभी तो कोई नहीं है, मैं बताता हूँ मैं आपको वो Right. Let us play and because I wanted both of them to because they died a day apart, I wanted to remind the people of the wonderful association. ये जो songs के शुरू हुआ था उनका शुरुआत हुआ था. I just wanted to play this in their memory क्योंकि without this కొడుకో నైజాము తలుకరోడా మంచివాడు मीटिंग ओके
Just trying to remind people what Gaddar has done so that people will never forget him, and doing so, we lost their friend. Oh, Hello. yeah, एक second. Do not give another PowerPoint 1 second. presentation रिया साहब, मैं before लास्ट एंडिंग watching आपको ही this. दे रहा हूँ. खाली एक Spend अच्छा थोड़े थोड़े लफ्ज. పొడుస్తున్న పొట్టు మీద నడుస్తున్న కాలమా పోరు తెలంగాణమా आपने शादी के लिए पहले ఇది చూస్తే ఎర్రని భగవంతుడు ఎవడు? సూర్యుడు. ఆ ఉదయించే సూర్యుడితో పొడుస్తున్న పొట్టుతో పోటీ పడినటువంటి కాలం. అలా కాలంతో నడిచిన వాడే కదిలిపోతాడు. ఓ పొడుస్తున్న పొత్తు. వందనం వందనం. ఆ పొడుస్తున్న పొడుస్తున్న పొత్తు మీద నడుస్తున్న కాలమా పోరు తెలంగాణమా పోరు తెలంగాణమా పోరు ప్రాణమా పొడుస్తున్న పొత్తు మీద నడుస్తున్న కాలమా పోరు తెలంగాణమా పోరు తెలంగాణమా పోరు ప్రాణమా పోరు ప్రాణమా సూర్యుడు ఆడిన భూతుల్ని అదిగో చిన్నారి బిడ్డల్ని జన్మనిచ్చింది. కొడుకో నా కొడుకో కొంగల తెర పైలం కొడుకో నా కొడుకో కొంగల తెర చాయకే కాడ తిగే కాడ తొక్కుడు కాడ మల్పు కాడ పైలం కొడుకో నా కొడుకో यस सर, रिया साहब आप बोलिए, बाद में 2 मिनट का समय है. हाँ आप जी बोलिए महमूद अली साहब. हाँ बता रहा हूँ मैं हाँ गदर साहब से भी मुलाकात होती थी जहीर साहब के पास आते थे वो गदर साहब और गदर साहब जब भी आते थे तो जहीर साहब उनको भाई कहकर बुलाते थे यानी ब्रदर कहकर बुलाते थे और अक्सर दफ्तर में मुलाकात होती थी गदर साहब से जहीर साहब के साथ ही मुलाकात होती थी वहाँ पर कभी लंच भी करते थे वो और फिर अक्सर बात होती थी यानी जो पॉलिटिक्स है मुल्क की पॉलिटिक्स है स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स जो है उस पर Right. बात होती थी लेकिन दोनों के ख्यालात बहुत मिलते जुलते थे दोनों भी जो वीकर सेक्शंस है उनके लिए माइनॉरिटीज के लिए बहुत सॉफ्ट गोशा रखते थे वो लोग और चाहते थे कि माइनॉरिटीज को भी उनका राइट्स मिले उनके यानी जो आज देखने में जा रहा कि जिस तरह वायलेशन किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का ह्यूमन राइट्स का तो उससे बहुत पसंद नहीं करते थे जहीर साहब और हमेशा यही कहते थे कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए सबको मसावत मिलनी चाहिए और Right. पार्टिकुलरली इसलिए कि मुस्लिम्स के लिए वो बहुत ज्यादा जोर देते थे इसलिए देते थे कि आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर बैकवर्ड हैं तो वो मुसलमान हैं जहीर साहब का मानना ये था कि मुसलमान अपने बैकवर्डनेस को दूर कर सकते हैं दो चीजों से एक तो एजुकेशन के जरिए दूसरा बिजनेस के जरिए यानी Right. इकोनॉमिकली अगर फॉरवर्ड हो जाएं Right. तो एक बहुत मिनट है कुछ साहब, कर महमूद सकते अली साहब को भी. महमूद अली साहब लास्ट मिनट आप बोलिए. Pay homage to both of those great souls who are no Yeah. more. Yes. So actually, Telangana have lost great souls. It is not the communities, Telangana itself, because both have influenced the entire Telangana, Right. or they were wise on behalf of the people. तो ये बहुत लॉस हुआ तेलंगाना को
और आगे इसको रिप्लेस करना, इसको ये गैप को फिल करना बहुत बहुत मुश्किल है. Right, sir. So they are, I call they are now with the people. Right. They were in the people, they were with the people, they are now with the people. So we, on behalf of entire Telangana, we pay homage, we pay tributes, we pay condolence, Right. whatever And, sir, respect we, on ARTS what